हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की इंग्लिश की न्यू बुक संतूर और इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 मधुज विश। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, न्यू वर्ड्स को देखेंगे, उसके उनके मीनिंग समझेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको देखेंगे और लास्ट में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले रीड कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 है और चैप्टर का नाम क्या है, मधुज विश, मधु की इच्छा। मधु लव्ड फूड। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. He was never tired of eating. Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. One day, as he was eating, an old man came. Madhu felt sorry for him and shared his food with him. The old man was so happy that as he was leaving, he said, "My child, you have been so kind. In return, you can wish for anything from this tree and it will give granted." Madhu felt very happy. He thought, "I can ask for different types of food and enjoy them forever." He sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." He heard a voice from the tree, "You don't want anything else. Think it over." Without thinking, Madhu said, "Nothing else." First, he asked for laddus. At once, a basket full of laddus appeared. He happily started eating it. After some time, he got bored. Then he thought of colorful fruits. Immediately, fruits in basket appeared. He started eating them. There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guavas, oranges, and many more. Then he got bored eating only fruits. He asked for savories. Immediately, savories like matri, samosas, kachori, potato chips, and vada appeared in huge basket. He happily started eating them. As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. He looked around. There was food everywhere, but no water. He asked for water, but the tree said, "You wanted only food, not water. So, what if I don't get water? I will have sarbat, kheer, and badam milk for my thirst," thought Madhu. Soon all these appeared in jugs. Madhu drank them all, but hiccups did not stop. They became louder. He was now desperate for water. He prayed to the tree, "May all this food disappear and let me have water instead." "Are you sure?" the voice from the tree asked. "Yes, I am sure. Now I know the importance of water. No other drink can replace water. Please give me just water." A jug of water appeared. Thirsty Madhu drank as though he had never seen water. His hiccups stopped. He was no longer thirsty. तो इस चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली है। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा। फिर नेक्स्ट है हमारा इमीडिएटली, तुरंत। अपीयर्ड, सामने आ गए, प्रकट हुए, प्रकट होना। फिर सेवरीज, नमकीन, नमकीन की जो चीज़ें होती हैं। हिकअप्स, हिचकी। डिसअपियर, गायब होना, गायब होना। इंस्टेड, इसके अलावा, के अलावा। रिप्लेस, बदल देना, बदलना। थर्स्टी, प्यासा। तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड और उनके मीनिंग। अब इसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन है, इसको जो चैप्टर है इसको हम समझ लेते हैं, इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। तो चलिए, मधु लव्ड फूड। मधु को फूड बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। उसको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, मतलब तरह तरह के फूड खाने पसंद थे और स्नैक्स खाने पसंद थे, जैसे आप सभी को पसंद होंगे। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो कभी खाने से किसी भी चीज़ को थकता नहीं था, कुछ भी उसको खिला दो और वो खाता रहता था। एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री एंड ईट हिज लंच। और
हर दिन क्या करता था, एक वैनियन ट्री के नीचे बैठता था और अपना लंच करता था। आप देख रहे हैं ये ट्री है और ये बैठा यहाँ पर लंच कर रहा है। वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन केम। एक दिन वो लंच कर रहा था, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ गए। वहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ओल्ड मैन आए। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। और मधु को क्या लगा कि उसको अपना फूड शेयर करना चाहिए, और उसने अपना फूड ओल्ड मैन के साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी। और जो ओल्ड मैन थे वो क्या थे, वो काफ़ी खुश हुए। दैट एज ही वॉज लिविंग ही सेड माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड। उन्होंने, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने कहा आप बहुत ही क्या हो, दयालु हो। तो इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। और उन्होंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और अगर तुम कुछ भी इस पेड़ से, इस ट्री से मांगोगे तो आपकी पूरी इच्छा होगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। उसने सोचा कि मैं तरह तरह के फूड यहाँ से इससे मांगूंगा। एंड एन्जॉय दैम फॉर एवर। और हमेशा इसको खाता रहूँगा और एन्जॉय करूँगा। ही सेट देयर एंड क्लोजिंग हिज आइज सेड। वो वहाँ पर बैठा और आंखें अपनी बंद कर, क्लोज करके बोलता है, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो ट्री से बोलता है कि मुझे तरह तरह के खाने दो और इसके अलावा नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ये ट्री से बोल रहा है। फिर ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री। तभी वो ट्री से एक आवाज़ सुनता है, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। क्या तुम्हें कुछ, सच में कुछ नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर। फिर से सोच लो एक बार। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, मधु सेड। मधु बोलता है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज। सबसे पहले उसने लड्डूज मांगे। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। और तुरंत ही क्या हो गया, बहुत सारे लड्डू आ गए जो एक बास्केट में थे। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट। और खुशी खुशी वो उनको खाने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड। हम कभी कोई भी चीज़ खाते, एक ही चीज़ खाते रहते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही क्या हो गया, जो मधु था वो भी क्या हो गया, बोर हो गया लड्डू खाते खाते। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स। तब उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ नई चीज़ मंगाते हैं और कलरफुल फ्रूट्स मंगाते हैं। इमीडिएटली फ्रूट्स इन बास्केट अपीयर्ड। और तभी क्या होते हैं, उसके सामने जो एक बास्केट फ्रूट से भरी हुई आ जाती है। ही स्टार्टेड ईटिंग देम। वो उनको खाने लगता है। देयर वर ग्रेप्स। उसमें क्या क्या थे, ग्रेप्स थे, मैंगोज थे, एप्पल्स थे, बनानाज थे, जैक फ्रूट थे, मेलन्स थे, गुआवा थे, ऑरेंज थे एंड मैनी मोर। और इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स थे। आप देख रहे हैं ये बास्केट है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। देन ही गॉट बोर्ड। उसके बाद भी वो फल खाते खाते, फ्रूट्स खाते खाते भी बोर हो गया। ईटिंग ओनली फ्रूट्स। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। तभी उसने सोचा कि अब चलो कोई दूसरी चीज़ मंगाते हैं, नमकीन चीज़ें मंगाते हैं। इमीडिएटली तुरंत सेवरीज लाइक मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड बड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। तभी उसके सामने क्या होता है कि जो नमकीन वाली चीज़ें होती हैं जैसे मटरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो, बड़ा, ये सारे के सारे एक बड़े से बास्केट में उसके सामने आ जाते हैं, प्रकट होते हैं। अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग। और खुशी खुशी वो क्या करता है, उनको खाना स्टार्ट कर देता है। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स। जब हम खाते हैं तो हमें क्या आती है, कभी कभार जब पानी नहीं पीते तो हमें क्या आने लगती है, हिकअप्स या हिचकी आने लगती है। ही वॉन्टेड वाटर। अब हमें क्या चाहिए, जब भी हिकअप्स आती हैं हमें क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो उसको भी क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, वाटर चाहिए था। ही लुकड अराउंड। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। और चारों तरफ क्या था, उसके चारों तरफ उसके फूड था और कुछ भी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड। फिर वो ट्री से क्या बोलता है कि पानी के लिए मांगता है, पानी मांगता है। यू वांट। तभी ट्री बोलता है, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर। तो वो ट्री उसे याद दिलाता है कि आपने क्या 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 कहा था, आपने कहा था कि आपको केवल फूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम्हें वाटर नहीं मिल पाएगा। सो व्हाट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट। तो वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पानी नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लूँगा जिससे जो पानी की तरह थोड़ी सी पतली होती हैं, जैसे कि शरबत पी लेगा, मीठा मीठा होता है, खीर खा लेगा, बादाम मिल्क पी लेगा, उससे क्या होगा, उसे उसकी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा उसे लगा। सून ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स। तभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें खीर, शरबत, बादाम मिल्क, ये सारे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं, अपीयर्ड हो जाते हैं।
मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। मधु क्या करता है, उनको सभी को क्या करता है, पी लेता है, ड्रैंक पी गया, बट उसकी जो हिकअप्स थी, उसकी हिचकियाँ थी, वो स्टॉप नहीं हुई। दे बिकम लाउडर, और वो और ज़्यादा तेज हो गई, लाउडर तेज होती गई। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब उससे पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। वो ही प्रेड टू द ट्री, तभी वो ट्री से क्या करता है, प्रार्थना करता है, प्रेड प्रार्थना की, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, अगर ये सारा का सारा फूड डिसअपियर हो जाए, एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इसकी जगह पर मुझे पानी दे दो। भले ही ये सारे के सारे जो फूड है वो गायब हो जाए, लेकिन मुझे क्या दे दो, आप पानी दे दो। आर यू श्योर, तभी ट्री बोलता है। द बॉयज़ फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, तभी जो ट्री होती है उससे एक आवाज़ आती है, क्या तुम श्योर हो, पक्का तुम्हें, एक बार सोच लो। यस आई एम श्योर, तभी वो बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे वाटर की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी दूसरी ड्रिंक क्या कर नहीं सकती, वाटर को रिप्लेस बदल नहीं सकती, उसकी जगह स्थान नहीं ले सकती। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, कृपया मुझे क्या दो, केवल वाटर ही चाहिए, जस्ट वाटर, ओनली वाटर। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, और तभी उसके सामने एक जग ऑफ वाटर, पानी का जग आता है, प्रकट होता है। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, और वो इतना ऐसे पानी पीता है जैसे उसने कभी भी पानी ना देखा हो। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, और उसकी जो हिचकियाँ थी, हिकअप्स थी, वो स्टॉप हो गई, यानी कि रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब वो प्यासा नहीं रहा। तो ये स्टोरी थी, और जिसमें मधु नाम का बच्चा है, और उसको पता चलता है कि किस तरह पानी की इम्पोर्टेंस है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पानी की कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी थी। अब आगे हम देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डिड मधु एन्जॉय। मधु एन्जॉयड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक स्वीट्स, फ्रूट्स एंड सेवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू थिंक दैट ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ओल्ड मैन था उनके पास मैजिकल पावर थी। हाउ डू यू नो, आपको क्यों ऐसा लगता है, या आपको कैसे पता चला। तो इसको हम लिख सकते हैं, येस ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, आई नो दिस बिकॉज ही आस्क्ड मधु टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द ट्री एंड थिंग्स अपेयर्ड, जब उसने कहा कि कुछ भी आप उससे मांग लो ट्री से, वो मिलेगा, और जब उसने उसको मांगा तो सारी चीज़ें उसके सामने आ गई, प्रकट हो गई, या अपीयर्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश। द ट्री आस्क्ड मधु टू थिंक ओवर विश बिकॉज इट वांटेड टू कंसीडर हिज चॉइस केयरफुली बिफोर मेकिंग इट। तो ट्री चाहता था कि वो जो भी मांगे उससे पहले वो अच्छे से सोच ले कि उसे क्या मांगना है, इसलिए उसने बोला थिंक ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। आपको कुछ चीज़ें ऐसे बतानी है जो मधु ने खाई, तो बहुत सारी चीज़ें मधु ने खाई थी, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसने जो चीज़ें खाई थी, मधु एट लड्डूज, ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज, जैक फ्रूट्स, मेलन्स, गुआवाज, ऑरेंजेस एंड सेवरी स्नैक्स लाइक मटरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड बड़ा, ये सारी चीज़ें उसने खाई थी। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। थिंक एंड से, हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स, क्या आपने कभी हिकअप्स एक्सपीरियंस की हैं। तो सभी ने की होंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, यस यस आई एक्सपीरियंस हिकअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, जब हिकअप्स आती हैं तो आप क्या करते हो। व्हेन आई गेट हिकअप्स आई ड्रिंक वाटर स्लोली, मैं पानी पीता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या आपको लगता है कि वाटर इम्पॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट वाटर नो लिविंग थिंग्स विल सर्वाइव, कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती। क्वेश्चन 4, इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस, अगर आप मधु के स्थान पर प्लेस पर होते, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, आप उसकी जगह पर होते तो क्या मांगते और क्यों। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे की विश अलग अलग हो सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। इफ़ आई वर इन मधुज प्लेस आई माइट विश फॉर समथिंग फन लाइक बीइंग एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड,
और हैविंग अ मैजिकल स्टिक। तो ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, लेट अस लर्न। मधु एन्जॉयड द फॉलोइंग आइटम, राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। बनाना, खीर, मेलन, गुआवा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, लड्डू, वड़ा, जैकफ्रूट, समोसा। अब यहाँ पर कुछ बास्केट हैं, फ्रूट की बास्केट है, स्वीट की है, सॉल्टी स्नैक्स की है। तो यहाँ पर देखते हैं, फ्रूट्स में जो आएंगे फ्रूट में रख देंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, हमारा है बनाना। तो ये बनाना इसमें आ गया, यहाँ पर आ जाएगा बनाना। नेक्स्ट है खीर, खीर किस में आएगा, स्वीट्स में, खीर इसमें आ गया। फिर है मेलन, मेलन फ्रूट्स में आएगा, मेलन। फिर गुआवा फ्रूट्स। नेक्स्ट इज़ कचौड़ी, कचौड़ी आएगी इसमें, सॉल्टी स्नैक्स में, कचौरी। पोटैटो चिप्स इसमें आ जाएगा, पोटैटो चिप्स। लड्डू आएंगे स्वीट्स में, लड्डू। फिर है बड़ा, नमकीन, सॉल्टी। जैक फ्रूट, ये होगा फ्रूट। नेक्स्ट इज समोसा, समोसा सॉल्टी में है। तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सारे सेंटेंस 1 2 3 इनको सही से पढ़ना है। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज़ काइंड। अब देखो उसने फूड क्या किया, शेयर फूड को शेयर किया, तो वो क्या हो गया, ही इज़ काइंड। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, खाना चाहता था सारी चीज़ें, तो क्या हो गया, वो ग्रीडी हो गया। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू द मधु, ही इज़ जेनरस। उसने वो चीज़ें दी, उसको गिफ्ट दिया, तो वो क्या हो गया, वो जेनरस हो गया। तो ये क्या बता रहा है, क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो अब क्या करना है, हमें आगे देखना है। चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, डिस्क्राइब द पीपल बिलो। तो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ब बताना है, वर्ड बताना है नीचे के लिए। अब तो ये वर्ड है ब्रेव, पोलाइट, सेल्फिश एंड लेजी। प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। प्रमोद क्या करता है, अपने जो टॉयज हैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो वो क्या हुआ, ब्रेव हुआ, नहीं। पोलाइट हुआ, नहीं। सेल्फिश, यस ही इज सेल्फिश, सेल्फिश। नेक्स्ट इज द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। ये जो वुमेन है, इसने बच्चे को कहाँ से बचाया, रॉबर से बचाया। तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई, इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, शी इज़ पोलाइट, लेजी, ब्रेव। क्या होगी, तो ये है ब्रेव, शी इज़ ब्रेव। नेक्स्ट इट, अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अद्वैत हमेशा क्या करता है, बेड पर लेटा रहता है और कुछ भी नहीं करता। तो वो क्या हुआ, शी इज़, तो वो क्या है, शी इज़ लेजी, शी इज़ लेजी। नेक्स्ट इज, प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरी वन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा क्या करती है, सभी को विश करती है मॉर्निंग में। तो शी इज़ क्या है, शी इज़ पोलाइट, शी इज़ पोलाइट। नेक्स्ट इज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं 1 और 2, इनको ध्यान से पढ़ना है। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, सैम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। दोनों क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं, दोनों क्या करना है, एक में मिलाना है। तो क्या हो जाएगा, बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। टेलीविज़न देख रहा है ये भी, टेलीविज़न ये भी देख रहा है। नेक्स्ट, टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड। दो सेंटेंस है, उनको हम जोड़ सकते हैं इनटू अ सिंगल सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविज़न। तो एक सेंटेंस क्या बनेगा, सैम एंड प्रथम आर वाचिंग टेलीविज़न। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर सेंटेंसेस हैं 1 2 3। अमन हैज़ अ पेन, अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन हैज़ एन इरेजर। तो अमन के पास क्या है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है। तो तीनों सेंटेंस को हम अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो क्या बनाएंगे, अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। तो एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, प्रथम वर्क्स एट नाइट। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है 1 और 2। सैम क्या करता है, आफ्टरनून में वर्क करता है, एंड जो प्रथम है नाइट में। तो इसमें क्या करेंगे, बोथ सेंटेंस लाइक सेंटेंस टॉक अबाउट डूइंग, काम की बात हो रही है, वर्क की बात करो,
बट वाई डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम। तो इसमें क्या करेंगे, सेम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। अब दोनों काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, बट आ गया। द टू सेंटेंसेज कैन बी कंबाइंड एज, बट इनके बीच में आ जाएगा। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट। तो दोनों का यूज़ करना है हमें, एक जगह पर हमने एंड का किया है, दूसरी जगह बट। तो जब सेम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड आ जाएगा, डिफरेंट काम करेंगे तो बट आ जाएगा। तो यहाँ पर आता है आई एट एन एप्पल, आई एट एन ऑरेंज, आई एट अ पीच। अब क्या है, सारे के सारे किसके काम है, एट एट एट, यानी खाया गया है कुछ। तो इसमें सेम चीज़ें बातें हो रही खाने की, तो क्या है, वर्क इज सेम। तो यहाँ पर एंड का यूज़ होगा, आई एट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड a peach. नेक्स्ट इज आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। मुझे कार्टून देखना पसंद है। माई सिस्टर लाइक टू वॉच मूवीज़। अब दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों वॉच कर रहे हैं, लेकिन क्या एक को कार्टून पसंद है, दूसरी को मूवीज़ पसंद है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बट का यूज़ करेंगे और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे आई लाइक टू वॉच cartoons but my sister likes to watch movies. Next, Anita plays volleyball, Anju plays volleyball. तो इसमें हो जाएगा, दोनों सेम है तो इसमें क्या एंड आ जाएगा, अनीता एंड अंजू बोथ प्लेज वॉलीबॉल, बोथ प्ले वॉलीबॉल। नेक्स्ट है डोलमा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। तो इसको मैं क्या हो जाएगा, डोलमा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट शी हैज spent all her pocket money on sweets. Next, Rajesh wants to go to the park, he has not finished his homework. तो इसमें हो जाएगा राजेश wants to go the park but he has not finished his homework. Next, let us listen. Your teacher will read part of the story. Listen carefully and tell the class what happened after that. Madhu said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." As he was eating, he suddenly got hiccups. He wanted water. अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या होगा आपको इसके आगे बताना है। फिर नेक्स्ट इज लेट अस राइट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी है, इसको हमें कंप्लीट करना है। विजया इज़ अ यंग गर्ल, शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज। अब इसको क्या करना है, ईच डे, अब इसके बाद क्या है, ब्लैंक स्पेस है। अब आपको क्या करना है, इस कंप्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है अपने आप। करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।